Good morning, students. Today we will discuss about the different method of sampling that are used in collecting data. So in previous class we have discussed about the meaning of sampling. So sampling is the process of selecting observation to provide an adequate description and interferences of the population. So it is about the selection, means we have to select out of given number. For example, we can say that at your home your mother cooked the food. So if she is cooking rice, or we can say vegetable, that then she take one or two piece to check, okay, that now it is raw or it is ready. So it means some item are taken, one or two, not the whole rice are checked. मतलब जो एक दो आइटम ली जाती है उनके बेस पे क्या है, रिज़ल्ट पता चल जाता है हमें कि जो हमारा काम है वो हो गया है, जो राइस है वो बिल्कुल रेडी है या अभी कच्चे हैं, ठीक है. So that is sample method only. Okay, so in statistics also we take some sample, and on the basis of that we give our results. Okay, so sample, it is unit that is selected from population. Population we means that item, means whatever item we are given. Okay, for example, if a person want to collect the data relating to the poverty, then he select means the whole population is there, so out there are many items, so he will take some items, he will select the unit कि उसको कितनी डाटा लेने हैं. In sampling method the person will select the items, then represent the whole population. So उन item को वो select करेगा जो कि उस पूरे यूनिवर्स को represent करे. Purpose to draw the interference. So why sampling frame? So because as we also discussed earlier about census method, so in census method the if we want to calculate the population of our country, then census method is used. Okay, it means each and every unit of universe is taken in collecting data, or we can say data is collected of each and every unit, and then there is result of our research. So in sampling you can see sampling frame means what you want to talk about, कि किस चीज़ के बारे में आप बात करना चाहते हो, ठीक है. then sample in sample means that what actually observe in the data, कि आपने जो क्या चीज़ मीन्स आपने एक फ्रेम तैयार किया, देन व्हाट यू ऑब्जर्व, उसमें से आपने किस चीज़ को ऑब्जर्व किया. ओके, सो अगर टोटल पॉपुलेशन है उसमें से आप कुछ आइटम्स लोगे, फिर आप ऑब्जर्व करोगे कि क्या क्या चीज़ें आपने एक्चुअली कलेक्ट किया है, क्या आइटम आप एक्चुअली ले रहे हो, और जो आइटम ली जा रही है इज़ दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग द होल पॉपुलेशन. तो आपके जो रिजल्ट्स रहेंगे क्या वो एक्यूरेट होंगे. Then we have stratifying random sampling. In this, the population as random sampling, we have discussed random sampling is like a, for example, lottery system. That in lottery system, there is chances of each and every unit to be selected. कि उसमें random sampling में chance होता है कि जितने भी हमारे पास आइटम है उनके सभी के सिलेक्ट होने का. जैसे लॉटरी में क्या होता है कि सबके नाम की स्लिप्स है उनको इकट्ठा करके एक बॉक्स में डाला जाता है. सो जो उस बॉक्स में से स्लिप निकाली जाएगी, इट मीन्स किसी का नेम भी आ सकता है. तो चांसेस होते हैं ना वहाँ पे कि किसी जितने भी स्लिप्स डाली गई है उनमें से किसी का नाम भी आ सकता है. तो इट मीन्स सभी के आने के चांसेस रहते हैं. सो पॉपुलेशन इज़ डिवाइडेड इंटू 2 और मोर ग्रुप कॉल्ड starter. So सब सैम्पल्स आर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टार्टर्स. मतलब इनमें क्या है कि जो हमारी टोटल जो आइटम है उनको दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, एंड देन रैंडमली जो चीज़ें वो ली जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 11th क्लास में टोटल 20 स्टूडेंट है. ओके, सो कुछ स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने
मतलब 10th में मैथ पढ़ा है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ा, उन्होंने मैथ की जगह कोई और सब्जेक्ट ले लिया। सो 20 में से वी कैन से 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मैथ पढ़ा है एंड 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ा है। सो अब जो 12 स्टूडेंट है जिन्होंने मैथ पढ़ा है, अगर उनमें से हम रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं आइटम्स, देन आवर डाटा विल नॉट बी एक्यूरेट, हमारे रिजल्ट्स हैं वो एक्यूरेट नहीं रहेंगे। वाई? बिकॉज वी आर रैंडमली टेकिंग एंड इफ़ वी डिवाइड द स्टूडेंट्स इन द टू ग्रुप लाइक 12 of students who have studied mathematics and there are another group 8 students who have not studied mathematics, so randomly we will select the student from the 12. Out of 12 we will take 3 students and out of 8 we will select 2 students, and on the basis of that we will give our results. It means our data will be accurate because these two groups represent the whole population. Okay, so this is about stratify random sampling. So merits and demerits, we can say advantage and disadvantage कि क्या इनके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हो सकता है, demerit क्या है. First, assure representation of all the group in the sample population. As I already tell you कि दो ग्रुप में हमने बच्चों को डिवाइड किया है, तो दोनों ग्रुप्स में से जब हम बच्चों को ले रहे हैं तो इट मीन्स वो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे. Characteristics of each stratum can be estimated and comparisons made, कि हम क्या है कंपैरिजन उसमें कर सकते हैं क्योंकि हमने ऐसे आइटम्स लिए जो कि पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे. देन डिसएडवांटेज, रिक्वायर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऑन प्रोपोर्शन ऑफ ईच स्ट्रैटम. स्ट्रैटम इज जस्ट लाइक टू ग्रुप्स में जो स्टूडेंट को डिवाइड किया है. सो उसमें से क्या है, उन दोनों ग्रुप की हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पता होनी ज़रूरी है कि कौन से बच्चों ने मैथ पढ़ा है, कौन से बच्चों ने मैथमेटिक्स नहीं स्टडी किया है. सो फर्स्ट वी हैव ऑल द एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन. अगर हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं पता है तो हमारे जो रिजल्ट्स हैं दैट विल नॉट बी करेक्ट. देन स्ट्रैटिफाई लिस्ट कॉस्टली टू प्रिपेयर, फिर उसको प्रिपेयर करना कॉस्टली होता है. नेक्स्ट वी हैव quota sampling. So in this, population is first segmented into mutually exclusive subgroups, just as in stratified sampling. कि जैसे हमने stratified sampling में जो भी हमारी पॉपुलेशन थी उसको हमने 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया था, ठीक है, तो वैसे ही इसमें भी क्या है कि हम क्या करेंगे, सब ग्रुप्स में हमारे जो आइटम्स हैं उनको हम डिवाइड कर देंगे. ओके. सो एडवांटेज ऑफ दिस इज़ यूज्ड व्हेन रिसर्च बजट इज़ लिमिटेड, कि कब यूज़ किया जाता है, जब जो रिसर्च का बजट है मींस जो एक्सपेंडिचर है वो हमारा क्या है, लिमिटेड है. वेरी एक्सटेंसिवली यूज्ड अंडरस्टूड, कि इसको बहुत गहराई से अच्छे से समझा जाता है. नो नीड फॉर लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन एलिमेंट. ओके, तो अलग से कोई लिस्ट प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं होती. देन डिसएडवांटेज वी हैव वेरिएबिलिटी एंड बायस कैन नॉट बी मेजर. टाइम कंज्यूमिंग, कि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है. प्रोजेक्टिव डाटा बियॉन्ड सैम्पल नॉट जस्टिफाइड. सो जो हमारे डाटा है वो क्या है कि इट मे बी जस्टिफाइबल एंड इट मे बी नॉट जस्टिफाइड, कि जो हमने ग्रुप में डिवाइड किया है अगर हमारे डाटाज में कुछ भी गलती हो जाती है तो इट मीन्स जो ग्रुप हमने डिवाइड किया वो पूरी पॉपुलेशन को, आइटम्स को रिप्रेजेंट करेंगे. तो अगर डाटा में मिस्टेक है इट मीन्स हमारे पूरे रिजल्ट में मिस्टेक आ जाती है, तो दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड. देन वी हैव सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग. सो ऑर्डर ऑल यूनिट इन द सैम्पलिंग फ्रेम, कि फर्स्टली जो हमारी लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि जो ये पर्सन है इनको एक रो में खड़ा कर दिया, ठीक है. सो पहले इनको क्या किया कि एक फ्रेम बना दिया इनका. देन एवरी nth नंबर ऑन द लिस्ट इज सिलेक्टेड. लाइक इसमें यू कैन सी हेयर लाइक थर्ड एवरी ब्लू, द पर्सन हु आर शोन इन ब्लू कलर मीन्स एवरी थर्ड पर्सन इज सिलेक्टेड फ्रॉम द लाइन. ओके. सो पहले क्या किया कि जो हमारा सैम्पल हैं उनको हमने एक ऑर्डर में खड़ा कर दिया, ठीक है.
फिर ऑर्डर में खड़ा करने के बाद क्या है, हम उसमें से थर्ड वी कैन सेलेक्ट द फिफ्थ, एवरी फिफ्थ आइटम कि मान लो फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में टोटल 50 स्टूडेंट है, ठीक है, तो हमने पहले 50 स्टूडेंट को खड़ा किया, फिर हमने ऐसा ऑर्डर बनाया कि हम उस लाइन में से हर फिफ्थ बच्चे को निकालेंगे, लाइक फ्रॉम फर्स्ट टू फिफ्थ स्टूडेंट को निकाल लिए, उसके बाद जो टेंथ नंबर पे जो स्टूडेंट है वो निकल जाएगा, देन 15th नंबर पे है, देन 20th नंबर पे है, तो ऐसे ऐसे हमारे एवरी फिफ्थ स्टूडेंट है उसको हम लेते जाएंगे। सो दैट इज़ कॉल्ड सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक क्यों? क्योंकि इसमें हम सिस्टमेटिक से हमारा फ्रेमवर्क तैयार करके देन वी टेक द डाटा, ओके। तो हम अब उसके बाद क्या है, सैम्पल लेते हैं, हमारे सैम्पल को कलेक्ट करते हैं सिस्टमेटिक से, पहले उसको रेडी किया जाता है, फ्रेम तैयार किया जाता है। सो दैट इज़ कॉल्ड सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग, ओके। So you can see in this picture every third item is selected. Then we have advantage and disadvantage of sampling. So in this moderate cost, moderate usage, simple to draw sample की जो cost है वो ना बहुत ज़्यादा रहती है ना ही कम, and ड्रॉ करना easy होता है, easy to verify कि आसानी से वेरीफाई कर सकते हो। डिसएडवांटेज है पीरियडिक ऑर्डरिंग रिक्वायर्ड कि हमें टाइमली क्या है जो ऑर्डर है, मतलब जो सिस्टम बनाना है हमारा, उसकी ज़रूरत होती है, ओके। सो स्टूडेंट्स वी हैव डिस्कस अबाउट द डिफरेंट मेथड ऑफ सैम्पलिंग। सो वॉच द वीडियो एंड ऑल्सो रीड दिस टॉपिक फ्रॉम योर बुक। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, यू आर फ्री टू आस्क। थैंक यू।